Hello dear students, in last session of the OCM revision, right, chapter number 1, we started and gave the information that is middle level management. The question was there, that is which other name of the middle level functions, right, it's a link between the two levels. Information मैं तुमने आपी दी है. Now let's start the third and last level, that is bottom level of management. तो questions mostly हमारी जो पूछा है the different functions of the bottom level management, what are or which are the other names of this particular level of management. Okay, the sentence that is bottom level of management, though it is lower level of management, still it is very important to explain the statement. Okay, so different of the informations are there and questions are arise 1 or 2 or 3 marks. So let's start with the bottom level. Now all the three will completed today, so maybe 5 mark question આના પછીનો જે આવે છે difference between all these three level, we will discuss that one. Who are included, the another question in the bottom level of management. Let's see. Supervisor, jobbers and foremen are included at the particular level of management. Once in 2018 or 19 the question was there in the board examination, who are included in the bottom level management. The list were there. Okay, so under that different points were there. એમાં વર્કર્સ લખેલા હતા. તો some of the students gave the answer that is workers. That is not true, because as per the book workers are not included at the bottom level. हाँ, officially તમે કહી શકો, but supervisor, jobbers and foremen are there in book, so we have to follow this one. So they are included in the supervisor, jobbers and foremen. This level, the other name is known as bottom level, supervisor's level, because supervision will be there at the highest level in this level. Decisions and policies decided by the top level management are actually implemented by this level. Therefore, this level is also known as functional or operational level of management. So another question, right? Other name, bottom supervisor level is there. Another name, functional and operational. So why it is known as the functional level management? Because whatever the decisions are taken at the top level, it is not implemented by the middle level. It is implemented surely by the bottom level, because work will be done and completed through this level. So the question completely એવો હોઈ શકે કે what are the reasons and why the particular level, bottom level, is known as functional? Because of that decisions are taken, right, at the top level. It will be implemented by this level. જે પણ કામ થશે એ બધું જ ઉપરના લેવલથી થશે. Also, supervisors working at this level are representatives of management. Another question, that the particular representatives of the management here are the supervisors, because in bottom level management different officers are there, departmental heads are there, but here the supervisors. At this level management functions are performed less while administrative work is more. If the question is there related to this one, explain the statement. You have to explain this one if this statement is there. So in bottom level management or at this level of management, functions, mostly management functions are less, administrative વહીવટીય કામ વધારે હશે. Now let's move to the functions. First one, to supervise function of employees, workers, all the people those who are working at this level, supervise them through the supervisor, and the work is done by the supervisor. They will supervise the work of the employees. કેમનું કામ કરે છે. Next one, to see that there remains discipline among employees and their morale is boosted. Sometimes it happens supervisor is working in a proper way, he is supervising the work, but sometimes at lower level, that is the bottom level, workers or the employees, they are doing good work, but sometimes they are not doing good work. So this particular person, that is supervisor, see that the remains discipline or not, they will be under discipline. And agar આવું થશે તો maybe you can say employees work morale will boosted, it will increase. Third one, to plan routine work of the department. See, they have the different type of works related to the administrative. Okay, so they can plan for the routine work, daily work for the department. So and so department is that they can utilize the time and they can do the work for the department. Okay, they take the orders from the middle level actually, but the main work policy, it is the orders were there in past or maybe it will be there in future from the top level. So उसको फॉलो करके ये रूटीन वर्क शुरू करेंगे. फोर्थ वन, टू परफॉर्म फंक्शंस रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़. ये फंक्शंस यहाँ होंगे. याद रखो सब लोग क्वेश्चंस में मिस्टेक करते हैं, दैट विल बी देयर कि भाई ये मिडिल लेवल का काम है. नहीं, द परफॉर्म फंक्शंस लाइक एम्प्लॉयज़ ट्रांसफ़र,
प्रमोशन एंड ट्रेनिंग, ये तीनों चीज़ यहाँ पर होती है और इसको अपर लेवल लेके हम मिडिल लेवल में लिख देते हैं, दैट इज़ नॉट गुड, राइट। वो याद रखो ये फंक्शंस बॉटम लेवल के हैं। फिफ्थ वन, टू गेट इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स एंड प्रोग्राम फ्रॉम द डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स टू कैरी आउट द डिपार्टमेंटल फंक्शंस। तो यहाँ पर जो भी काम होता है, राइट, वो मिडिल लेवल से आता है। वो इंस्ट्रक्शंस कलेक्ट करते हैं, ऑर्डर्स कलेक्ट करते हैं, राइट, प्रोग्राम जो है वो मिलता है उनके पास, वो ये सब डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स जो करते हैं वो उसके पास लेकर डिपार्टमेंटल फंक्शंस को आगे बढ़ाते हैं। तो उनका काम यही है, उनका एक्टिविटी यही है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ज़्यादा है, डिसीजन मेकिंग पावर यहाँ नहीं होता है। 6.1, टू परफॉर्म द फंक्शंस लाइक द लेआउट यानी अरेंजमेंट, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, ये याद रखो, अरेंजमेंट दैट इज़ लेआउट और रिपेयरिंग मेंटेनेंस भी है मशीनरी का, ये सब लोअर लेवल में होता है, ये मिडिल लेवल में नहीं होता है। कई बार ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि क्यों, तो दे हैव टू वर्क विद दिस पर्टिकुलर मशीनरी, तो दे कैन यूटिलाइज द पर्टिकुलर लेआउट, तो दे विल यूटिलाइज इन अ प्रॉपर वे। उनको यूज़ करना है, उनको फ्यूचर में भी यूज़ करना है, तो उनका काम सब कुछ ये लोग ही करेंगे ना, बॉटम लेवल। नेक्स्ट वन, 7th one, टू मेक अरेंजमेंट फॉर नेसेसरी इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल्स एट्सेट्रा फॉर द वर्कर्स। तो वर्कर्स को जो भी चाहिए उसका अरेंजमेंट ये बॉटम लेवल करेगा, मोस्टली द रॉ मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स, उसको लेके ही ये लोग आगे चलेंगे, उसका यूज़ करके ही आउटपुट आता है। 8.1, ये छोटे छोटे एक मार्क के क्वेश्चन भी मैं साथ में बता रहा हूँ, ये दोनों कई बार आ चुके हैं, 6 और 7। 8.1, टू सॉल्व द जेन्युइन प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स। Why the word is used genuine? Because sometimes some of the normal problems are that it will be solved by themselves. यूनियन लीडर्स होते हैं वो सॉल्व कर देते, लेकिन ये बॉटम लेवल में जो भी काम है, फंक्शन है सुपरवाइजर का है, वो जेन्युइन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का है। 9th one, टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस एंड पॉलिसीज डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ऊपर ही हमने देखा, राइट, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, राइट, यहाँ पर ये जो वर्क होता है एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, मैनेजमेंट फंक्शंस का काम नहीं, लेकिन जो ऑर्डर्स यहाँ से आएंगे वो यहीं पर इम्प्लीमेंट होंगे, डिसीजंस जो भी आएगा, पॉलिसीज जो भी होगी, ये यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगी बॉटम लेवल पर। 10th one, टू फॉरवर्ड रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ टेकिंग प्लेस एट द बॉटम लेवल। तो ये काम खास ध्यान रखो, यहाँ पर रिपोर्टिंग लोअर लेवल से अपर लेवल पर जाता है, अपवर्ड है, तो दे फॉरवर्ड द रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ टेकिंग प्लेस एट द बॉटम लेवल। सजेशंस, नॉट ओनली द रिपोर्ट, जो काम किया है वो नहीं बताते, साथ में सजेशंस भी देते हैं और कंप्लेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ भी पहुंचाते ऊपर तक, है कहाँ पर, मिडिल लेवल तक। डायरेक्टली ये टॉप लेवल से कनेक्टेड नहीं है, हाँ दे कैन टेक द ऑर्डर्स बट दे कैन रिपोर्ट डायरेक्टली। टॉप लेवल से इनको डायरेक्टली कई बार ऑर्डर मिलते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली टॉप लेवल को रिपोर्ट नहीं कर सकते, ये भी याद रखो। तो रिपोर्टिंग क्या है, उनके काम का रिपोर्टिंग है, उनके सजेशंस है और कई कंप्लेंट्स हो एम्प्लॉयज़ की वो, तो ये भी याद रखो 10th पे। सो दैट इज़ द एंड ऑफ द पर्टिकुलर बॉटम लेवल। बट एक चीज़ याद रखो, बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट दो इज़ द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, स्टिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी ज़रूरियात ज़्यादा है, उसका इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा है। सक्सेसफुल परफॉर्मेंस बाय दिस लेवल लीड्स टू अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ से ही हमारा सक्सेस रेशियो बढ़ेगा, बिकॉज दे विल इंक्रीज इन फ्यूचर द वर्क, द आउटपुट, द प्रोडक्शन, वॉट एवर अचीवमेंट बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हाँ यहाँ से ही होता है। कई बार ऐसा होता है कि कई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो डायरेक्टली हमारे बॉटम लेवल से ही फुलफिल होते हैं, राइट। ऑल्सो वी कैन से द सक्सेसफुल परफॉर्मेंस होता है विच प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द एंटायर बिजनेस। तो पूरा बिजनेस है उसको यहाँ से ही कुछ सपोर्ट मिलता है, तो कह सकते हैं ये सपोर्ट सिस्टम है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस पूरे 3 अलग अलग सेशंस में टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल लिया, उसकी इन्फॉर्मेशन ली, कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं 1, 2, 3 मार्क में। जनरली अभी तक तो 1 और 2 मार्क में ही क्वेश्चन आते थे, 1 आध क्वेश्चन 3 मार्क का आता था इस चैप्टर में, लेकिन इस साल इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी है, बिकॉज ऑफ दैट कोविड-19, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर 30% रिडक्शन। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, समझ लो ये तीनों सेपरेटली 5 मार्क में तो नहीं आएंगे, तीनों साथ में शायद आ सके, और मोस्टली डिफरेंस बिटवीन दिस 3 वो इम्पोर्टेंट 5 मार्क में हो सकता है, सो वो भी ध्यान पर रखना। तीनों के तीनों हमने अलग अलग क्वेश्चंस के साथ लिए, तीनों के फंक्शंस देखे, तीनों की हु आर इंक्लूडेड वो भी देखा, कई अलग अलग नाम से उसको बुलाया जाता है वो भी देखा, एंड कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए है ये भी देखा। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन है मोस्टली ये कवर हो चुका है, फिर भी इसको हम फिर से एक बार देखेंगे इन द डिफरेंस में।
So difference between top level, middle level and bottom level management, TLM, MLM and BLM. ओके, ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। अगर आपको फिगर के साथ ड्रॉ करना हो तो फिगर ज़रूरी है, इसलिए फिगर ड्रॉ करो, उसके बाद ये करो। हाँ, बोला गया है तो स्पेशली, अगर नहीं बोला गया तो डायरेक्टली दे दो। 8 या 10 पॉइंट लिख सकते हो। एंड अगर टोटल आप लिखना चाहते हो तो 5 पॉइंट से ज़्यादा लिखने की कोशिश मत करना, टाइम ज़्यादा कंजप्शन हो सकता है। ओके, दैट्स द एंड ऑफ द आवर सेशन ऑल्सो। नेक्स्ट टाइम द डिफरेंस। थैंक यू।